ایسا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی رائے ہے. حکومت گرانے میں اس پہ تو سب متفق ہیں, عمران خان کی رخصتی پہ سب متفق ہیں, لیکن کوئی اپنا نظریہ بتاتا ہے, کوئی اپنا طریقہ کار بتاتا ہے اور کوئی اپنا بتاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل اکثریتی جماعتیں جو ہیں وہ استعفوں اور لانگ مارچ پہ ان کا اتفاق ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اکیلے یہ بوجھ اٹھا لے گی کہ وہ یہ الزام اپنے سر لے لیں کہ وہ استعفوں سے پیچھے ہٹیں یا وہ لانگ مارچ کے آپشن سے پیچھے ہٹ جائیں. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں آنا ہوگا اور وہ آئیں گے, ہمیں یقین ہے کہ وہ آئیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اور وہ حکومت جس کو آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سلیکٹڈ کا خطاب دیا تھا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو جلد از جلد رخصت کیا جائے. تو اس میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا اور وہ واپس ہی آئیں گے اور پی ڈی ایم کی صفوں میں آپ کو ملیں گے, ایک سٹیج پر, ایک پیج پر, یک زبان اور یک آواز ہو کر. وہ بہت جلد انشاءاللہ پی ڈی ایم میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ سے حکومت اور مزید مضبوط ہو جائے گی ملتوی ہونے سے؟ نہیں, دیکھیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. 26 مارچ کو نہ صحیح تو 26 اپریل کو ہو جائے گی. اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلد دوسری تاریخ بھی آ جائے گی. اور پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے. میں یہ ایک بات بڑی واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ کل سے جو ہماری میڈیا یہ بات کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے, پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. پی ڈی ایم ویری مچ انٹیکٹڈ, پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی 9 جماعتیں ایک نقطے پہ ان کا اتفاق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنی سوچ اور اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں, ان کا اپنا ایک خیال ہے, ان کا اپنا ان کی ایک رائے ہے, ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے, سوچیں گے. لیکن اس سے حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت کتنی مضبوط ہوگی, نہیں ہو سکتی, اس کو گرنا ہی ہے. بہرحال عمران کو جانا ہے, اس حکومت میں رخصت ہونا ہے. 26 مارچ کو نہ صحیح, مہینے بعد صحیح, 2 بعد صحیح, لیکن یہ جائیں گے, یہ رخصت ہوں گے. اور سب سے زیادہ جو الٹیمیٹم مجھے نظر آ رہا ہے, جو ڈیڈ لائن ہے, وہ آنے والا بجٹ ہے. آنے والے بجٹ تک عمران خان کی حکومت بجٹ پیش کرنے کے بعد نہیں رہے گی. میرا یہ ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میری ذاتی اسسمنٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا. مولانا صاحب کی ناراضگی بھی بجا ہے اور مولانا صاحب کو راضی بھی کر لیا جائے گا. ان کی ناراضگی کیونکہ مولانا صاحب نے تمام نظریوں کو اور تمام جماعتوں کو اور تمام سیاسی قوتوں کو ایک پیج پر اکٹھے رکھا ہوا ہے اور اس کو 3.25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. مولانا صاحب کی ناراضگی اپنی جگہ پہ ہے کیونکہ انہوں نے محنت بہت زیادہ کی ہے اور انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. مسلم لیگ نون نے تو اپنے استعفے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے کہا کہ ہماری صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے تمام استعفے آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ جب چاہیں یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں. فیض بھائی ایسا ہوتا ہے, یہ جب بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی, ایک باپ کے اگر 3-4 بیٹے بھی ہوں, ان میں بھی اپنے گھر اور اپنے جو ترکہ ہوتا ہے اس کی تقسیم میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, تھوڑا اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن جو مایوسی ہے یہ وقتی طور پر ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. حکومت وزراء نے اس کا کل مذاق اڑا رہے تھے. حکومتی وزراء تو خیر جی وہ تو دیکھا, ان کو تو پی ڈی ایم کے بننے کے پہلے دن ہی ان کو مروڑ اٹھتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو تو ہمیں جب وہ اکٹھا دیکھتے ہیں تو ان پہ تو غشی کے دورے آتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے جنوں کے دورے ان کو پڑ رہے ہیں. تو ان کو تو خوشی ملی ہوگی, لیکن یہ خوشی ان کی جو ہے یہ وقتی طور پہ ہے, یہ عارضی ہے, یہ مستقل نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ ان کی یہ خوشی اور یہ مٹھائیاں بانٹنے کے دن یہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. مولانا صاحب جو ہے وہ بڑا لیڈر ہے اور بڑی منزلوں کا مسافر ہے. بڑے لیڈروں کے دل اور سینے چوڑے ہوتے ہیں اور بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ لمبی مسافت کا جو لیڈر ہوتا ہے, مسافر ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا نہیں کرتے. اور مولانا صاحب کا سینہ مجھے پتہ ہے, میں ذاتی طور پہ گزشتہ 30-32 سال سے مولانا صاحب کو جانتا ہوں اور وہ بہت بڑے صبر کے مالک ہیں. انشاءاللہ وہ ان کا جو گلہ ہے, جو ان کا ناراضگی ہے وہ بجا ہے, لیکن ان کو راضی کر لیا جائے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مسلم لیگ نون کھڑی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کھڑی ہے,
जमीयत उनके साथ है, हमारी दूसरी जमातें आप देख लें, अख्तर मेंगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, बहुत सारी जमातें अभी हैं उनके साथ, वो अकेले थोड़ी हैं, मिल के चलेंगे उनके साथ। ठीक है फैज़ भाई, मैं आपको एक बात बड़े कैटेगोरिकली बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कभी भी इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान अपने जो इसकी पीडीएम की जो तहरीक है वो तारीख़ में इस वक्त अपने मंतकी मोड़ पे पहुंच चुकी है, और ऐसी सूरत में और ऐसे हालात में अगर वो कोई यू टर्न लेते हैं या अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं तो इसका मलबा और इसका बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहती दुनिया तक नहीं संभाल सकेंगे, वो ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। मैं इसीलिए मैं वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पीडीएम में वापसी और पीडीएम के फैसलों पे मनोवन फैसला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन उनको सूट भी नहीं करता। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मरियम बीबी जो है वो 2 बार जेल जा चुकी है। एक बार नवाज शरीफ उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे आया था, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। हमारी जो क़ियादत है वो जेलों के साथ, कैद व बंद की सहूलतों के साथ बिल्कुल आदी हो चुके हैं, और हमें इन चीज़ों की कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि अगर मरियम बीबी को, हमें उसकी समझ आ रही है कि उनको ये जो दोबारा ये जो नेब जो कुछ कर रहा है, नेब का क्या काम है इसके साथ कि मरियम बीबी बात कर रही है, वो बोल रही है, वो एहतजाज कर रही है, और मरियम नवाज शरीफ ने कौन सी ऐसी बात की है जो आइन और कानून और पाकिस्तान के दस्तूर से के दायरे से बाहर हो। कानून और दस्तूर के दायरे में रहते हुए उन्होंने अगर बात की है तो पाकिस्तान में मीडिया भी आज़ाद है, ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बात करेंगे, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे उनको सुननी पड़ेगी, उनको बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। और मरियम नवाज़ को अगर गिरफ़्तार किया गया तो हम उस पर अपना भरपूर एहतजाज करेंगे, एहतजाज हमारा हक है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कांधों पर बहुत बड़ा बोझ है, एक ज़िम्मेदारी का बोझ है। हमने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत का जो नाजुक डोर है इसको हमने थामे भी रखना है, और इसको हमने टूटने भी नहीं देना। और दूसरी बात साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी क़यादत कुछ को जेल में डाल दिया, हमज़ा साहब जेल में, शहबाज साहब जेल में, भाई बाप जलावतन। इन हालात में घर में कोई बालिग मर्द ना रहे तो ख़वातीन खाना को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। जहाँ मैं बैठा हूँ आपने देखा था कि एक दौर आया था जब खान अब्दुल वली खान के घर में कोई मर्द बाकी नहीं रहा तो बेगम नसीम वली खान ने दुपट्टा सर पे ओढ़कर वो चौकियातगार में आके बैठ गई थी। और जो खातून सर पे दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए और चौक में आके तहरीकों का वो तहरीकों की क़ियादत शुरू करने लगे तो उन तहरीकों को पाकिस्तान की तारीख़ आप उठा ले, वो तहरीक कभी नाकाम नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक लंबी भी हो सकती है, उसमें वक्त भी लग सकता है, लेकिन तहरीक नाकाम नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत है, क़ियादत तो खैर ये है नहीं, ये तो सारे शोधे किस्म के लोग हैं, बड़े स्टूपिड किस्म के मुशीर और वज़ीर इकट्ठे होकर ये पाकिस्तान की बागडोर इनके हाथ में चली गई है। ये हमारी बदकिस्मती है। डस्का में अगर इलेक्शन देखें, 2018 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जिस पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उस पर क्वेश्चन मार्क उठा दिए थे कि उसको पूरी दुनिया में लग, फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करार दिया गया, और ऐसे इलेक्शन की हैसियत कुछ नहीं होती। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और अपोजिशन की दूसरी जमातें अगर असम्बलियों में बैठी हुई हैं तो ये हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से बैठे हैं। उस वक्त जरदारी साहब ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें असम्बली में जाकर अपना रोल अदा करना चाहिए, अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून तो मौलाना साहब के साथ एग्री कर रही थी कि हमें ऐसी असम्बली में बैठना ही नहीं चाहिए, और उस असम्बली में बैठने की सबसे बड़ी कीमत मुस्लिम लीग नून ने अदा की और अभी तक हम अदा कर रहे हैं। तो अब जो आपने बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन अगर फ्रॉड हो तो पीटीआई वालों को वो कबूल है, लेकिन अगर कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो वो पीटीआई वालों को कबूल नहीं है। ये उनसे इस्तीफ़ा मांगते हैं। मैं इनको ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम तुमसे इस्तीफ़ा मांग रही है। 5 रुपए की रोटी तुम लोगों ने 20 रुपए की कर दी है,
40 रुपए का 60 रुपए का पेट्रोल 115 रुपए में बिक रहा है, 6 रुपए बिजली का यूनिट तुम्हारी हुकूमत में 24 रुपए का बिक रहा है, 500-600 रुपए का सुई गैस का बिल 5-6 हज़ार में चला गया है, जो 40-50 रुपए की दवाई होती थी वो आज 400-500 रुपए में मिल रही है। कौम तुमसे इस्तीफ़ा मांग रही है, तुम इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए इनको। इलेक्शन कमीशन के हम पुश्त पे खड़े हैं, पहली बार हमें भी महसूस हुआ कि इलेक्शन कमीशन अगर आज़ाद हो तो वो ऐसे होती है, और इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, यकीन करें कि पाकिस्तान में जब जब फ्रॉड इलेक्शन होंगे, कठपुतली इलेक्शन होंगे, तो इस कौम का इलेक्शन के प्रोसेस पर और जमहूरी अमल पर, सियासी कारकुनों का और पाकिस्तानी अवाम का, इनका एतमाद उठ जाएगा, बल्कि उठ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए हैं ज़िमनी इलेक्शन में, तो उनका एतमाद बहाल हुआ है पाकिस्तानी कौम में। अगर ये तसलसल दोबारा किसी ने तोड़ा तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, जो हमारी पोलिंग रेशो है, जो बहुत ही कम है, मेरे ख्याल में कोई 30-35% हमारी पोलिंग रेशो है, ये ख़त्म हो जाएगी। लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पब्लिक कहती है, मैं भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ के आया हूँ, मैं जब वोट मांगने जाता था तो लोग हमें मजबूर होकर कहते थे कि इख्तियार साहब हम वोट डालने क्यों जाएं, हम वोट डालते आपको हैं, तो वो निकलता कहीं और से है। तो ऐसे हालात में हमें अपनी इलेक्शन कमीशन की पुश्त पे खड़ा होना होगा। मुस्लिम लीग नून और PDM में शामिल जमातें इलेक्शन कमीशन की पुश्त पर, उनकी बैकिंग पे खड़ी हैं। इंशाअल्लाह हुकूमत के हाथों उनको ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। फैज़ भाई, ये ऐसा है कि पेट में रोटी ना हो, बदन पे कपड़ा ना हो और सर के ऊपर छत ना हो तो एहतजाज ऐसे ही सुकड़ के रह जाते हैं। और सारी बुराइयों की जड़, सारी ख़राबियों की जड़ इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी, मुल्क में आज़ाद, फ्री एंड फेयर, गैर जानिबदार इलेक्शन शफाफ होंगे, तो उसके बाद लोगों का जो वोट होगा वो अपनी वोट की पर्ची के ज़रिए अपने मुंतखब नुमाइंदों का जो हकदार हैं उनका इंतखाब करेंगे, तो उनका एतमाद बहाल हो जाएगा। हुकूमत की क्या कारकर्दगी, हुकूमत कहाँ खड़ी है, मुझे बताएं। आपकी कौन सा चौक, आप चारसद्दे का कोई चौक ले लें, फारूक आजम चौक ले लें, नौशेरा का शोबरा चौक ले लें, मिंगौरा का आप ग्रीन चौक ले लें, मर्दान का आप कॉलेज चौक ले लें, पिशावर का स्वीकारनो चौक यादगार ले लें, वहाँ पे मजदूर सुबह जाते हैं, दोपहर को बगैर मजदूरी के वापस घर आते हैं। हुकूमत कहाँ है? 1.5 करोड़ लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक कह रहा है कि 1.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से, कारोबार से, रोज़गार से और घरों से वो बेदखल हो चुके हैं, वो फारिग हो चुके हैं। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत का काम है लोगों को रोज़गार फराहम करना, हुकूमत का काम है महंगाई कंट्रोल करना। मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार कि 600 रुपये आटे का तेला आज बाज़ार में, यहाँ पे आप पूछ लें, वो 1500 का मिल रहा है। 10 रुपये 5 रुपये की रोटी हमारी हुकूमत में मिलती थी, वो आज 20 रुपये की है। और खुदा न ख्वास्ता अगर ये नालायकों की और इन नाबालिगों की हुकूमत रही और ये खुदा न ख्वास्ता 2023 तक रहे, तो ये रोटी 100 रुपये की मिलेगी और ये आटे का थैला आपको 10,000 में मिलेगा। तो हुकूमत तो कहीं नहीं है। आप मुझे बताएं, आपकी गवर्नर हाउस की क्या हालात है, जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाना था। ये जो आपका PM हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाना था, क्या बना? वहाँ पे तो आजकल अयाशी के अड्डे बने हुए हैं। आपके PM हाउस, गवर्नर हाउस, CM हाउस, वहाँ पे तो कंजर खाने बने हुए, शराब, रक्स और शबाब की वहाँ पे महफिलें सजती है, कुकड़बाजी के वहाँ पे मुकाबले होते हैं, ये बटेरबाजी के मुकाबले होते हैं। ये हुकूमत है, हुकूमतें ऐसी होती हैं। ये सारा, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि अगर पब्लिक ने वोट दिया, अपनी मनचाहा वोट दिया और अपनी तसल्ली से उन्होंने अपने मुंतखब नुमाइंदे खुद उनका चुनाव किया, तो ये सारे जो तहरीक इंसाफ के आपको लीडर और वज़ीर मशीर और MNAs नज़र आ रहे हैं, ये पता नहीं कोई कबाब बना रहा होगा, कोई जाके अपना, जो आप देख रहे हैं ना आजकल जो इधर सूबाई हुकूमत में इधर बैठ के वज़ीर बने हुए हैं, इनको वापस सहाफ़ी भी बनने नहीं दिया जाएगा। जो पहले कभी सहाफ़ी हुआ करते थे आजकल वज़ीर बने हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं इनको हमने डॉक्टर बना दिया वरना ये पकोड़े बेच रहे होते, इसको तो कोई पकोड़े बेचने भी नहीं देगा। ये ऐसे हालात में हुकूमत क्या होती है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कानून का वज़ीर है वो ख़ुद कानून को मतलूब है, जो सेहत का मिनिस्टर है उसकी अपनी सेहत ख़राब है,
جو وزیر داخلہ ہے وہ اس پہ خود پتہ نہیں کتنے کیس ہیں. جو ریلوے کا منسٹر ہے وہ ریلوے کا قاتل بن بیٹھا ہے, اور جو وزیر دفاع ہے وہ اپنی کھوئی ہوئی نشست کو نہیں بچا سکتا, تو ملک کا دفاع کیا کرے گا.